Hello student, in this lecture we want to study the important formulae concerning with the work done. तो पहला that is for isothermal irreversible process. For isothermal irreversible process, that is when the pressure kept constant, W equal to minus P external V2 minus V1. तो यहाँ पर V1 initial volume, V2 final volume and PEX with the external opposing pressure. उसके बाद में सेकंड for isothermal reversible process. For isothermal reversible process, here in reversible process that is takes place in an infinite step, and if the process is thermodynamically reversible, then the maximum work is obtained by using a formula W maximum equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, या फिर we can write W maximum equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. Remember that P1 with the initial pressure and P2 with the final pressure. Similarly, V1 and V2 with the initial and final volume. If the process is isothermal reversible का मतलब that is takes place in an infinite step where the volume changes from V1 to V2 या फिर pressure changes from P1 to P2. तो ये दो फार्मूले हैं. अब कब कौन सा फार्मूला यूज करने का, ख्याल में रखने का, if in a problem that is the gas expand or contract या फिर compress isothermally against a constant external pressure, अगर ये वर्ड आ गया constant external pressure या फिर value of any one pressure is given, then this formula is used. And if the pressure changes अगर बोला है, P1 और P2 की वैल्यू अगर दिया है तो ये W maximum निकालने का. This is the important point. उसके बाद में now here the next term is used, that is called N. N का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, N का मतलब that is the number of moles. Number of moles, how to calculate? That is the mass of gas upon its molar mass. Mass of gas upon its molar mass. Generally mass expressed in a gram or the molar mass, वैसे similarly gram per mole. The unit of a number of moles equal to mole. उसके बाद में नेक्स्ट वन ख्याल में रखने का, यहाँ पर अगर ये फार्मूला लेंगे अपन तो व्हाट इज हियर, W is directly proportional to the number of moles. If all the conditions are same, CET JEE नीट के लिए ख्याल में रखने का, if all the conditions are same, then the number of moles increases with increase in work. अगर number of moles increase होता है तो work also increases. For different gases 2, 3, 4 gases दिए हुए हैं, अगर number of moles varies दिए हुए है, बाकी condition same है तो W is directly proportional to the number of moles. या फिर by using this formula और एक बात याद रखने का, W is inversely proportional to the molar mass. W is inversely proportional to the molar mass. If all the conditions are same, then the molar masses for a different gases are given. तो ख्याल में रखने का, डायरेक्टली अपन बता सकते हैं जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, लेस वर्क डन. The molar mass is inversely proportional to the work done. Molar mass increases, work done decreases. तो ये ख्याल में रखने का, these are the important formulae. अब यहाँ पर अपन डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. CGS सिस्टम हो गया, उसके बाद में MKS, SI सिस्टम. तो हर एक के लिए क्या क्या यूनिट आएगा तो इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. तो पहला दैट इज वॉल्यूम. What are the different units which are used for volume? तो volume generally it is used in a liter. तो 1 liter equal to 1000 ml.
1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ ml। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर अपने को पता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं अपन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इस सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी 1 ml इक्वल टू कितना हो गया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद में अनदर द डेसीमीटर इज यूज। डेसीमीटर 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर होता है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितना आ जाएगा, फिर 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए क्या लिखोगे, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर सपोज एक्सप्रेस इन एसआई सिस्टम क्यूबिक मीटर इज गिवन, तो 1 मीटर इक्वल टू अपने को पता है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर 10⁻³ क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक डेसीमीटर। सो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाने के बाद में -3 इंटू m क्यूब। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो these are the important units for volume। 1 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर या फिर 10⁻³ क्यूबिक मीटर। नाउ फॉर प्रेशर, तो जनरली प्रेशर एक्सप्रेस इन एटीएम एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर अपने को पता है 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल, या फिर वी कैन राइट 760 mm हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल, ये एक दिया हुआ। या फिर इन टर्म्स ऑफ, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। 101.325 किलो पास्कल, या फिर पास्कल में लेते हैं तो 1 किलो बोले तो 10⁻³ और ये 2 पॉइंट बढ़ा दिया है 10⁵। तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1 एटीएम। लेकिन जनरली एक्सप्रेस इन अ बार, तो 1 बार इक्वल टू ख्याल में रखने का सिंप्लिसिटी 100 किलो पास्कल। सीधा सीधा 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा यूनिट ऑफ ए प्रेशर। तो जनरली बार इज यूज सिंप्लीफाइड, दैट इज 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल, या फिर 1 इंटू 10⁵ पास्कल। अब नेक्स्ट टर्म इज यूज, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जनरली एक्सप्रेस इन अ केल्विन। तो टेम्परेचर ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन इक्वल टू 273.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन, या फिर सिंपली 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग दिस you can find out the value of a temperature in Kelvin, या फिर डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन। तो ये होगा अबाउट वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज R, गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम। यूनिट ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब गैस कांस्टेंट दैट इज R। तो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन n इंटू T। और बाय यूजिंग यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए R। R की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। जैसा
फॉर एग्जाम्पल अब सिंक्रोनाइजेशन और उसके साथ में आर की वैल्यू भी देखेंगे अपन, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम और आर, प्रेशर वॉल्यूम आर। अगर प्रेशर एटीएम में है तो वॉल्यूम काय में लेने का, लीटर में लेने का। अगर प्रेशर एटीएम में तो वॉल्यूम लीटर में लेने का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इट इज फाउंड टू बी 0.0821 लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो ये हो गया प्रेशर के लिए एटीएम, वॉल्यूम के लिए लीटर, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो ये हो गया एक वैल्यू। नाउ सपोज इट इज इन टर्म्स ऑफ ए बार और ये लीटर के बजाय अगर डीएम क्यूब लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0.08205। तो यहाँ पर आ जाएगा बार इंटू डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये हो गया आर की वैल्यू। नाउ सपोज द प्रेशर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए किलो पास्कल। अगर प्रेशर किलो पास्कल में है तो वॉल्यूम लेने का, दैट इज इट इज इन टर्म्स ऑफ ए डीएम क्यूब। प्रेशर अगर किलो पास्कल में तो वॉल्यूम डीएम क्यूब। तो व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इट इज इन टर्म्स ऑफ ए जूल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। या फिर अगर ये पास्कल में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑलवेज टेकन इन क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑलवेज इन क्यूबिक मीटर। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गए आर की वैल्यू। तो ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए यूनिट्स ऑफ ए प्रेशर, वॉल्यूम एंड gas constant and different values of a gas constant in a different unit. Sometime it is expressed in a calories. अगर R calories में तो what is its value, R equal to 1.987, तो approximately 2 calories per Kelvin per mole। ये भी वैल्यू अपन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कैलोरीज यूनिट है तो R equal to 2 calories per Kelvin per mole। और दूसरा और ख्याल में याद रखने का, 1 बार इंटू डीएम क्यूब, 1 बार इंटू डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल। कितना आ जाएगा ये 100 जूल। तो ये पॉइंट याद रखने का। जैसा अपन ने देखा पीवी इक्वल टू वर्क, द डिफरेंट यूनिट ऑफ ए वर्क के यूनिट पता है अपने को, दैट इज वर्क एक्सप्रेस इन अ लीटर इंटू एटीएम, या फिर वर्क एक्सप्रेस इन अ कैलोरी, या फिर इट इज एक्सप्रेस इन अ जूल, या फिर एक्सप्रेस इन अ अर्ग। तो दीज आर द ऑर्डर ऑफ ए यूनिट्स ऑफ ए वर्क। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्क इज लीटर इंटू एटीएम और स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज द अर्ग। तो वर्क इज एक्सप्रेस इन लीटर इंटू एटीएम, या फिर कैलोरीज, या फिर जूल, या फिर अर्ग। वो हिसाब से कन्वर्शन करने का। तो 1 बार इंटू डीएम क्यूब इक्वल टू 100 जूल। तो बाय यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व द नंबर ऑफ ए न्यूमेरिकल्स। ओके।